Montée 2, leçon 2. Voici Paul. What does it mean? Here is Paul. So, let's see what the lesson has in store for us. So, in picture number 1, you see a boy. Let's try describing this boy. C'est Gabriel. Il est America. So, he is Gabriel and he is American. Il est gros. So, we used an adjective to describe his physical appearance. Il est gros. He is fat. Il porte un cartable sur le dos. So, he is wearing a backpack. Cartable is school bag or a backpack on his back. Il porte une casquette jaune. So, you see he is wearing a yellow cap. Il y a un livre dans sa main. He has a book, or there's a book in his hand. Et Gabriel, il est souriant. He is looking very cheerful. You see what we did right here? We described the boy Gabriel in the image using some adjectives. We not only described the boy, we also described the objects he's wearing or having in his hand using adjectives again. Let's look at the next person. Personne 2. C'est Victoria. Elle est anglaise. So she's Victoria and she is British. Elle est jeune. So in the image we see she is young. Elle a des cheveux bruns. She has brown hair. Image में तो black है ना? But book में brown है तो इसे. Okay, so she has brown hair. Elle porte de grandes lunettes. She's wearing big spectacles. You see right here? Then we see that she looks really happy. So we use the adjective heureuse. Elle est heureuse. She is happy. Parfait. On va à la personne 3. We move to person number 3. This girl right here is shorter than the other two we saw earlier. Let's see who is she. C'est Maria. Elle est italienne. So she's Maria. She is Italian. Elle porte un joli collant. What's collant? She's wearing pretty tights. So the printed tights you see she's wearing. Elle est petite. She is short. Elle a les cheveux frisés. You see her hair? She has curly hair. Elle a le visage rond. The shape of her face is round. So she's a round face. Mais elle est belle. She is definitely beautiful. Et finalement, on va à la dernière personne 4. C'est André. Il est français. So he is André and he is French. Il a un petit nez. So in the image you see he has a small nose. Not only that, il a de petits yeux. He has small eyes too. Il a les cheveux bruns. So he has brown hair. Il a une raquette. He has a racket. So, one thing is very clear. Since now we have described 4 pictures, definitely in this lesson we are going to learn comment décrire une personne. How do we describe a person in French? But definitely before that, there's something more to learn. And what is that? On va apprendre les parties du corps et la position des adjectifs. We are going to enhance our vocabulary by knowing body parts in French
as well as we'll be moving on to a new grammar topic of position of adjectives in a sentence. तो बिना किसी देरी के आगे बढ़े, चल शुरू करते हैं वोकैबुलरी के साथ. Les parties du corps यानी बॉडी पार्ट्स. सो इससे पहले मैं पढ़ाना शुरू करूं, देखिए कैसे करने वाले हैं हम बॉडी पार्ट्स. जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन आएगी आपके आगे दो बॉडी पार्ट्स की इमेज आएगी. मैं नहीं बताऊंगी उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप खुद गेस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उस बॉडी पार्ट को फ्रेंच में क्या बोला जाता है और साथ ही साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है. सो आपको क्या करना है, इमेज देख के सोचना है वो बॉडी पार्ट कौन सा है और मेरे साथ साथ फ्रेंच में उसको प्रोनाउंस करना है. स्टार्ट करें. द फर्स्ट टू इमेजेस आर हियर ऑन स्क्रीन. तो ये पहला बॉडी पार्ट है le cou. le cou. गेस कर ही लिया होगा, नेक. दूसरा बॉडी पार्ट है l'épaule. l'épaule, which is the shoulder. Next body part you see on screen is le coude. Le coude, the elbow. Next one, le bras. Le bras, arm. Next you see on screen la main. La main, the hand. And on the main you have les doigts gîtes, the fingers, et le pouce, thumb. Les doigts gîtes, le pouce. Puis tu as l'estomac. L'estomac. L'estomac in French is also called le ventre. Le ventre. And what about the next one? It's la poitrine. La poitrine, the chest. La poitrine. Let's move a little down and we have la cuisse. La cuisse, which is the thigh. Next is le genou. Le genou, the knee. Next we have la jambe. La jambe, the leg. Et puis on a le pied. Le pied, feet. On the feet we have the toe. Toe is called l'orteil. L'orteil. And what about the heel? The heel is la cheville. La cheville. Let's move on. We have le dos. Le dos. This is the back of a person. Et finalement, on a la hanche. The hip. La hanche. So we have completed all the body parts. Let's look at them all together in this table. I have divided the table in two parts. On the left side, you have all the body parts in sequence in English. And to the right, you have them in French. But do you think, is it all? Have we actually learned all the body parts? No. We are left with les parties du visage. We are left with the face parts. So let's begin with them. The first one we have la tête. The head. La tête. Puis on a le front. Le front. The forehead. Les cheveux. Les cheveux. Hair. Then above the eye we have le sourcil. Eyebrow.
sourcil. Now the eye in French is called l'œil. One eye, l'œil. Pair of eyes, les yeux. Les yeux. Poyana, l'oreille. The ear, l'oreille. Le nez, the nose, le nez. The one with which we talk, the mouth, la bouche. La bouche. One we brush every morning, the teeth, les dents. Les dents. Then we have la langue. La langue, which is the tongue. Et finalement, on a les lèvres. Les lèvres, the lips. So let's have a look at all the face parts together in one table. Similar to the previous one, here also on the left side, you see all the parts of face in English. And on the right side, you see them all in French. And with this, we complete the vocabulary of parts of body. What do we have next? The grammar topic, la position des adjectifs. I know we have already done adjectives in lesson 1. Then what exactly is this? आपने lesson 1 में एक चीज तो देखी कि फ्रेंच के एडजेक्टिव्स इंग्लिश के एडजेक्टिव्स जितने सीधे साधे नहीं हैं. वो ना केवल नाउन के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं, वो अपने नेचर के हिसाब से नाउन के पहले या बाद में भी लिखे जा सकते हैं. अब ये कैसे भला? कुछ याद दिलाओ. कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने उसी कॉम्प्रिहेंशन से पिक किए हैं जो चैप्टर की शुरुआत में था. Il porte une casquette jaune. So the adjective jaune here, is it before the noun or after the noun? After. Elle porte de grandes lunettes. The adjective grande, is it before the noun or after? Before. Elle a les cheveux frisés. This time again, the adjective is after the noun. Il a un petit nez. And this time the adjective is before the noun. So, how do we decide? There are some adjectives coming after the noun, while there are others which come before the noun. But how do we decide the position of adjectives? And that is what we're going to learn in this topic of la position des adjectifs. शुरू करें? So, हम शुरू करेंगे उन adjectives से जो noun से पहले आते. So, वो सारे adjectives which are used for describing the physical appearance and or qualities of a person, place and or thing, ये सब noun से पहले आते हैं. तो यानी कि कोई भी ऐसा adjective जो किसी जगह, चीज या इंसान की physical appearance या qualities को describe करे, वो सारे adjectives noun से पहले आएंगे. कुछ एग्जाम्पल्स देखें. जैसे adjectives telling about the beauty of a person or a place or a thing. जैसे elle est une jolie fille. She is a pretty girl. So यहाँ पे हमारा adjective था pretty, जो कि उस गर्ल की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा था, and that is why we placed it before the noun. Adjectives telling about the age of the person, place or thing, like c'est un nouveau stylo. Stylo is pen, nouveau is new. It's a new pen. So new उस पेन की एज बता रहा था कि वो कितना नया या कितना पुराना है, तो इसलिए हमने उसको भी नाउन से पहले रखा. नेक्स्ट, एडजेक्टिव टेलिंग गुडनेस.
अब गुडनेस से मेरा मतलब ये नहीं सिर्फ पॉजिटिव, गुडनेस से मेरा मतलब है उस इंसान, चीज या जगह के क्वालिटीज बताने वाले एडजेक्टिव्स, वो भी नाउन से पहले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ce sont de bons garçons. So these are some good boys. So good हमने boys से पहले लिखा. And finally the adjectives telling the size, like c'est une petite robe, this is a short dress. तो ये सारे कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ब्यूटी, एज, गुडनेस और साइज बताने वाले, ये सब नाउन से पहले आते हैं। और इनको याद करने के लिए एक शॉर्टकट भी है, एक एक्रोनिम जिसे हम बोलते हैं बैग्स। तो कोई भी एडजेक्टिव अगर बैग्स कैटेगरी का है, यानी ब्यूटी, एज, गुडनेस और साइज वाली कैटेगरी का, वो सब एडजेक्टिव्स नाउन से पहले लिखे जाएंगे। कितना आसान है ना। चलिए एक ट्विस्ट लेके आती हूँ। Only short descriptive adjectives are placed before the noun. In case of a long descriptive adjective, longer than the noun usually, we place them after the noun. So, ये बैग्स कैटेगरी वाले सारे के सारे एडजेक्टिव्स नाउन से पहले नहीं लिखे जाते। ज्यादातर वो एडजेक्टिव्स जो नाउन से छोटे, मैं कह रही हूँ ज्यादातर, ठीक है, वो नाउन से पहले आएंगे, और जितने हमारे लंबे लंबे एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के बाद आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंटेंस देखिए, ils ont un ami, एन एडजेक्टिव हमें ब्रैकेट में दे रखा है इंटेलिजेंट। पहले तो ये बताओ इस सेंटेंस में नाउन क्या है। इल्स हो गया सब्जेक्ट, ऑन्ट हो गया वर्ब, यूएन हो गया आर्टिकल, तो नाउन क्या बचा, एएमआई, आमी। अब आमी इंटेलिजेंट है, यानी मेरा फ्रेंड इंटेलिजेंट है तो ये गुडनेस वाली कैटेगरी का एडजेक्टिव, बट क्योंकि ये साइज में लॉन्ग है, आई विल प्लेस इट आफ्टर द नाउन। इसी तरह अगला देखिए, सीता रोमा, दिस इज अ बुक, एडजेक्टिव है ओनुइया, व्हिच मींस बोरिंग। अगेन गुडनेस वाली कैटेगरी, यानी क्वालिटी बता रहा है ये बुक की, बट क्योंकि ओनुइया भी एक लॉन्ग एडजेक्टिव है, ये भी कहाँ आएगा, नाउन के बाद। तो हमें क्या समझना है बच्चों, कि जितने भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स छोटे होंगे वो नाउन से पहले, और जितने भी लंबे होंगे वो नाउन के। कुछ दो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की लिस्ट ये रहे, इंटेलिजेंट, इंटरेसेंट, सूर्या, heureux, sérieux, ennuyeux। ये कुछ कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा नाउन के बाद में, इनको लर्न कर लीजिएगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब इतना सिखाने के बाद भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते, मैम सेंटेंस में कैसे लिखूं एडजेक्टिव, समझ नहीं आता। तो उसका भी एक शॉर्टकट निकाला है, सिखाओ। हाउ टू करेक्टली प्लेस एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो उसके लिए 3 स्टेप्स याद रखने हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। IMP, IMP इंपॉर्टेंट वाला नहीं, IMP मेरा शॉर्टकट तरीका इन एडजेक्टिव्स को सही से सेंटेंस में प्लेस करने का। I से आइडेंटिफाई, तो सब कुछ छोड़ दो, पहले तो सेंटेंस में वो नाउन कौन सा है जिसके लिए वो एडजेक्टिव यूज होने वाला है, उसे आइडेंटिफाई करो। क्योंकि अगर नाउन ही गलत आइडेंटिफाई करोगे तो एडजेक्टिव गलत ही लगाओगे। तो पहले नाउन को सही से आइडेंटिफाई करना सीखो, फिर उस नाउन के हिसाब से एडजेक्टिव को मॉडिफाई। मान लेते हैं नाउन था फेमिनिन सिंगुलर, तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव भी क्या होगा, फेमिनिन सिंगुलर। तो एक बार नाउन पहचान लिया, उसी नाउन के जेंडर और नंबर के हिसाब से एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दो।
और जब वो हो जाए, place it in the sentence as per the rules. अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव तो नाउन से पहले, नॉन डिस्क्रिप्टिव तो नाउन के बाद। तो ये हो गया ना IMP, आइडेंटिफाई, मॉडिफाई एंड प्लेस। बट ऐसा थोड़ी समझ आने वाला है तुम लोगों को, एक एग्जाम्पल करा रही हूं। देखो ये सेंटेंस, से यूनफी एंड ब्रैकेट में मेरा एडजेक्टिव जोली। तो देखिए पहले हम आएंगे स्टेप 1 पे, विच इज आइडेंटिफाई द नाउन। अब इस सेंटेंस में स हो गया सब्जेक्ट, ईएसटी हो गई वर्ब, यून हो गया आर्टिकल। तो मैंने नाउन आइडेंटिफाई कर लिया विच इज फी। अब नाउन आइडेंटिफाई हो गया है तो उसका जेंडर और नंबर भी देख लेते हैं। फी is ending with an e, is singular, it is feminine singular। अब नाउन आइडेंटिफाई हो गया तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े, मॉडिफाई द एडजेक्टिव। अब नाउन फेमिनिन सिंगुलर है, एडजेक्टिव पे क्या होगा बच्चों, फेमिनिन सिंगुलर। तो चलिए जोली को बनाए फेमिनिन सिंगुलर, वी विल ऐड एन ई। अब जोली बता रहा है उस लड़की की ब्यूटी, बैक्स कैटेगरी का एडजेक्टिव, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो इट विल बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन। So my answer will be say your jolie fee. Oops, मैंने गलती से गलत लिख रखा है। It will be say your jolie fee। गलती इंसान से ही होती है। चलिए समझ आ गया है तो आप प्रैक्टिस करें इसी रूल को कुछ सेंटेंसेस के साथ। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं 5 सेंटेंसेस। हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में दिख रहा है एक एडजेक्टिव। सो याद रखिए द रूल IMP। वीडियो को करिए पॉज और ट्राई करिए ये एक्सरसाइज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव। एंड जो लोग पॉज नहीं करने वाले आ जाओ, देखो मेरे साथ आंसर्स। तो हर सेंटेंस में मैंने IMP को फॉलो किया और उस हिसाब से अपने आंसर्स को लिखा। आपकी कन्वीनियंस के लिए एडजेक्टिव्स को बस मैंने बोल्ड में लिख दिया ताकि इजीली आइडेंटिफाई। ठीक है, अब इससे पहले मैं अगली कैटेगरी पे बढ़ूं कि वो कौन सी कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के बाद आते हैं, एक एडिशनल रूल जो आपको सिखाना है। रिमेंबर, विद प्लूरल एडजेक्टिव्स we write D apostrophe or DE and never DES। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी रूल है क्योंकि जब हम सेंटेंसेस प्लूरल बनाना सीख रहे थे हमने क्या सीखा है, हमेशा जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं UN या UNE उन्हें किस में चेंज करना होता है, DES। बट हमारे एडजेक्टिव्स फ्रेंच में थोड़े ढीठ हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं ऑलरेडी प्लूरल में हूं तो मुझे मेरे साथ कोई आर्टिकल नहीं चाहिए जो प्लूरल। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये सेंटेंस है रिया अशत दे रोड एंड ब्रैकेट में एडजेक्टिव मैंने लिखा बेल, तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकती। आई कैन नॉट राइट रिया अशत दे बेल रोड because what does my rule say? In case there is a plural adjective, so with that plural adjective we have to write DE or D apostrophe। okay, and हाँ ये रूल सिर्फ तब अप्लाई होगा जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा हो, नाउन के बाद आ रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता, DES हो LES हो, नो मैटर। बट अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, उस प्लूरल एडजेक्टिव उसके साथ आप DES नहीं लगा सकते। एक और एग्जांपल देखें, j'ai des appartements एंड मेरा एडजेक्टिव है grand।
तो इस केस में भी मैं ये नहीं लिख सकती, जे देख on the path, नहीं. I cannot use des with the plural adjective. Instead, what will I write? J'ai de appartement. So this way, I understand that in bags category adjectives, I use de or d apostrophe with plurals. अब इसी के साथ अगला टॉपिक पे तो मैम जाएगी नहीं, पहले मैम इसी टॉपिक की एक्सरसाइज कराएगी. सो अभी अभी जिन सेंटेंसेस में आपने एडजेक्टिव्स को प्लेस किया है, उन्हीं सेंटेंसेस को प्लूरल में चेंज कर दो. एंड क्या याद रखना है, जहां जहां प्लूरल DES हो रहा हो, हम DES नहीं लिखेंगे प्लूरल एडजेक्टिव्स के साथ, हम क्या लिखेंगे, DE या D अपोस्ट्रोफी. तो चलिए करिए वीडियो को पॉज, क्योंकि जो वीडियो पॉज नहीं करने वाले वो मैम के साथ अब आंसर देखें. सो आप देख सकते हैं हर सेंटेंस में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पहले और आखिरी सेंटेंस जहां प्लूरल DES और उसके आगे एक एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में था, सिर्फ उन दो केसेस में मैंने उस आर्टिकल को DE लिखा. Whereas if you look at the fourth sentence, यहां पर सेंटेंस में DES रहा वैसे का वैसा, क्योंकि DES के बाद एडजेक्टिव नहीं था प्लूरल नाउन था. ठीक है, ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगर सही ढंग से लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली याद रहे. चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड सीखते हैं उन एडजेक्टिव्स के बारे में जो नाउन के बाद आते. अरे मैम अभी तो सिखाया था, जितने भी लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के बाद आते हैं. नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है. कुछ और एडजेक्टिव्स भी हैं जो नाउन के बाद आते हैं, और वो कौन से हैं? All adjectives used for mentioning the color, nationality and shape of a person, place or thing, they are placed after the noun. तो वो सारे एडजेक्टिव्स जो कलर, नेशनैलिटी और शेप बताएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. कलर के एग्जाम्पल्स, j'ai une voiture noire. इंग्लिश में हम बोलते हैं आई हैव अ ब्लैक कार. तो फ्रेंच में कलर कहाँ आएगा? नाउन के बाद. तो लिटरली ये क्या हुआ? आई हैव अ कार ब्लैक. नेशनैलिटी, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? ही हैज एन इटालियन फ्रेंड. तो फ्रेंच में हम क्या लिख रहे हैं? Il a un ami italien. He has a friend Italian. और इसी तरह शेप, रोंद या कार्रे, राउंड या स्क्वायर, क्या बना? J'achète une table ronde. I buy a table round. इंग्लिश में तो I buy a round table होता है ना, तो इसीलिए तो फ्रेंच और इंग्लिश अलग है. तो इस एक्रोनिम को याद रख लो. CNS कैटेगरी के सारे एडजेक्टिव्स, कलर, नेशनैलिटी और शेप वाले सारे एडजेक्टिव्स आएंगे नाउन के बाद. तो अब जरा कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. वही 5 सेंटेंस, वही 5 एडजेक्टिव सेंटेंस के बाद वही सेम रूल IMP का, बट इस बार अगर वो CNS कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हो, कलर, नेशनैलिटी और शेप, तो वो कहाँ आएंगे? नाउन के बाद. जल्दी से करिए वीडियो को पॉज, क्योंकि अगले 2 सेकंड में आंसर्स आ रहे हैं स्क्रीन पे. Here you go. चेक करिए अपने आंसर्स. कहीं पे अगर मॉडिफिकेशन में गलती हुई है या आइडेंटिफिकेशन में, देखिए ऐसा क्यों हुआ है, एंड फिर मेरे साथ आगे बढ़ जाइए. अब जरूरी थोड़ी है हर सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव आए. कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव. तो कुछ बदलेगा भला? ना, वही 3 स्टेप्स IMP, उन्हें ही फॉलो करेंगे हम. यू आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस. इस बार साथ साथ एक एग्जाम्पल कराते.
एल फी, और ब्रैकेट में दे दिए दो एडजेक्टिव्स, petite एंड लियन। सबसे पहले क्या करेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई, जो हमने कर लिया है। हमारा नाउन है फी, which is feminine singular। नेक्स्ट स्टेप क्या था, मॉडिफाई। We modify the adjective according to the noun। तो petite और अंधिया दोनों को मैं क्या बनाऊंगी, फेमिनिन, एंड साथ ही साथ मैं उनकी कैटेगरी भी डिसाइड करूंगी कि ये बैग्स कैटेगरी वाले हैं या सीएमएस। तो देखिए, पति बना पति विद एन ई, एंड मुझे पता है कि ये साइज बता रहा है, एंड साइज वाले होते हैं बैग्स कैटेगरी। बैग्स कैटेगरी वाले एडजेक्टिव आते हैं नाउन से पहले। अगला है आंधिया। आंधिया का फेमिनिन बना आंधियन। ये है नेशनैलिटी यानी सीएनएस कैटेगरी, व्हिच कम्स आफ्टर। अब सब कुछ तो पता लग ही गया, प्लेस कर दो उसे सेंटेंस में। यू प्लेस द एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या बना, एल आ युन पति फी एंडियन। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान हो गया, एक ही बार में सारा काम हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ध्यान से करिएगा, हर सेंटेंस को, हर एडजेक्टिव को समझ के सेंटेंस में प्लेस करिएगा। आईएमपी भूलिएगा मत। पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए ये एक्सरसाइज, एंड फिर हम साथ साथ देखते हैं इनके आंसर्स। चलिए मेरे साथ। सो पहले 4 सेंटेंसेस के आंसर्स स्क्रीन पे ये रहे, जहां मैंने हर सेंटेंस में बड़ी केयरफुली एडजेक्टिव्स को प्लेस किया है नाउन के हिसाब से। एंड अगले 4 के आंसर्स ये रहे। सो देखा, इतना भी मुश्किल नहीं है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड हाँ, एडजेक्टिव्स याद करने की, क्योंकि अगर एडजेक्टिव का मतलब ही नहीं पता होगा बच्चों, तो कौन सा बैग्स कौन सा सीएनएस कैसे फिगर आउट करोगे। ठीक है, तो इसके साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का खत्म। अब आगे बढ़े या थक गए हो? आज के लिए मुझे लग रहा है इतना ही काफी है। सो आज हम इस लेसन को इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस लेसन की एक और इम्पोर्टेंट चीज वो डिस्कस करते हैं, और फिर आपको सिखाऊंगी उन सब लर्निंग्स को यूज करके एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन फ्रेंच में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए au revoir। I'll see you in the next class.